all the dear students. And today, I hope the slides are visible to everyone. And today, we will be starting with this unit number 2 in this online session. Okay. So, just to have a recap that what we have covered so far, because I hope that there are some other new student also, those who are joining my class for the first time. So for them, I'm just quickly reminding that what we have covered so far. Okay. Then we will move ahead. Just give me a moment. So in our previous classes, we have covered this unit number 1, where we have covered the historical evolution, then the meaning of operations management, what is system perspective operations management, scope, what are the different things which we cover under the head of operations management. These things we have covered. Then operations strategy, what are the different types of operation strategies a company can apply in their organization. And you know that we have discussed also that what are the different factors based on which we decide which one particular operational strategy is suitable for a specific type of businesses. Okay, so that we have covered. Then the benefits, that what are the different benefits of having an operations strategy, that we have a detailed discussion on these points. And the emerging trends, that what are the contemporary, we can say, the topics or the buzzwords which nowadays are evolving, emerging at the present time period in the field of operations management. So these were the things which we have covered so far, right? And now in this class, we will be starting with unit number 2, where our first topic is facility location. And so I'm just sharing the slides of unit number 2. So you can look into the syllabus also. I hope the slides are visible. If not, you can write in the chat box that you can see the syllabus first, that the facility location, and what are the factors affecting these location selection decision. And then we will be covering this location planning method. That is the numerical part in this unit, and linkages with supply chain network design decisions. That these are the topics which we are going to cover. So in the plant location, first you should be clear enough that what do we mean by this heading? That the when we say that the plant location decision, it means that you know that when a company starts their operations, when a company is, we can say, the most probably a business, the manufacturing centric organization where the products are getting manufactured. And like you can take any example like sofa, television, your laptop, mobile, your wristwatch, watch, any smartwatch. You can name any product, which the companies nowadays are offering to the customer. So before offering to the customer, you know what is required? The requirement is this we can say the location for their plant, right? If any question, then you can raise your hand also. Okay, then I will be allowing you to speak so that you can say what you want to. Okay, in that way we will be interacting in this session, because you know that if the mics are on, then the problem lies with the communication, and you know that already we have a paucity of time, because the few classes we have, as you know, after 15th, most probably till 15th we have these classes, and we need to, I will try to cover the syllabus as much as possible. Okay, so in meanwhile, if you have any question, you can raise your hand. Okay, or if I will be asking the question, you can raise your hand, then you can answer. You know that how do we interact. So plant location, as I said, that plant means plant and machinery. A company would like to set up for their manufacturing purposes. And for that purpose, when we are going to select a
location, then there are the so many we can say the factors which you always need to consider in your mind while you are going to take these decisions. So you can see that when we go through with this introduction part, that it is a strategic level decision making. It is written in this slide that it is a plant location or the facility location problem is an important strategic level decision. Why do we call it strategic? The reason being it is meant for long run. है ना, कोई भी कंपनी अगर हम बात करते हैं तो they are not going to change their location after a we can say the short period of time like 6 months 3 months they are going to change the location. You can just imagine the company like Tata Steel. You can imagine the company like this Wipro. You can take the name of Daikin, Hitachi. Do you really think that they when they are setting up their facilities for the purpose of production, do they really change in a short while? Never. That's why we always call this decision as a strategic level decision. है ना? Because the decision which will remain active or which will remain intact with for a longer period of time, that is called strategic level decision. And the selection of location is a key decision. Why it is a key decision? Because that when that what are the different goals of organization. These are the profit maximization and wealth maximization. And when we need to achieve these goals, then definitely you should be having minimum cost and you should be able to provide the best quality to the customer. This is always a challenge for the organizations. And if you are taking this decision, this a location selection decision, suppose by mistake or wrongly, then what will be the impact? This impact will be on larger level. This impact will be on long-term level. The reason being because that when we do the production on that in the cost of production, almost half or 40 to 50% you will find the cost is always related with the transportation and logistics. So if you are able to figure out or if you are able to work out on this particular cost, definitely you can save more for the organization. Right. So that's why this decision is a key decision because this is one key which may unlock the different locks for an organization like your cost minimization, profit maximization, wealth maximization, and optimization, your efficiency. All you can achieve if you are able to fix this particular problem as you desire in the whatever best way you can fix this particular problem. It will give you the long term mileage, the long term benefit for the organization. Otherwise you can imagine like मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ एक मोबाइल का. If your mobile company is if if a mobile company is getting material, there are different components from the different companies, and you can imagine that almost hundreds of components are required to manufacture one particular mobile. So suppose if those all the companies are at a very huge distance from the company, from a long distance they are at a long distance from the company, what will be the result? That the per unit cost, their every order cost will be increasing because of their transportation and logistic cost. And another scenario, when they have all those component producers location nearby to the facility location of the mobile, then you can imagine how much difference will be there in terms of cost. So that's why this is called a key decision. And when do we need to select a suitable location? So you can see there are most probably there are always two reasons. One, that when the organization is new, right? Means suppose I am going to start a new business like Andro Private Limited, and I am into the manufacturing. The first thing is for me is to find a location where we can start the production activity, the operational activity. And second case is in case of existing organization, suppose my company is 5 years old or 10 years old or 50 years old, but still the expansion phase is going on. With the passage of time, your customer will increase, your product range will increase, your product line will increase, right? In different shape, size, you are offering your product to the customer. You have different type of customer from the different segments. So when this expansion will take place with the passage of time, then definitely you need location to set up your additional plant, because in the very starting in the very initial days you may not be having the capacity which is required after 10 years down the line. So once your expansion phase will come, then definitely you need to expand your location, right? In that case you need this location for existing organization also.
अब हम देखते हैं एक बार कि इन केस ऑफ लोकेशन साइट फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप नीड टू बी टेकन. So I hope these steps are very well understood, very easy to understand. That the first is when we are going to select a location geographically, first is identification of region. As you know, if I take the example of India, you know there are north region, east, west, south region, है ना, south, west, east, north, northeast. So in that way, we have different, we can say the locations. So first and foremost, we have to identify in which region you are going to start. Suppose I have selected Delhi NCR region for the purpose of production for initiating my businesses, right? So in that case, after selection of region, what I will do, I will select a site within the region. मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करूंगा, लेकिन दिल्ली में भी कौन सा एरिया, क्या मुझे हडसन पर लेना चाहिए, क्या मुझे यूनिवर्सिटी जो कैंपस है नॉर्थ कैंपस, मुझे उसके पास लोकेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, या मैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो इंडस्ट्री सेटअप जहां पर है मुझे वहां, लाइक सोनीपत का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, फरीदाबाद का एग्जांपल, गुड़गांव, इनके मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर लोकेशन लेनी चाहिए. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to specify in which particular region, within the region, which particular site you are looking for initiating your activities. एंड वंस यू हैव सेटल्ड विद दिस डिसीजन कि हाँ मुझे, सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हम लोग नॉर्थ कैंपस में, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया कि आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सोनीपत रीजन, है ना, कि सोनीपत के आसपास मुझे एक साइट मिली है जो मुझे अच्छी लग रही है. मे बी आई मे हैव 2 साइट और 3 साइट नियर बाई एरिया बिकॉज दैट रीजन इज गुड फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, है ना. देन डायमेंशनल एनालिसिस. What is this dimension analysis? That the different factors will be there. Maybe the some of the factors are very much positive on that location. Some factors are there which are negating or missing on that particular location. जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बिजनेस फॉर दिस टेक्सटाइल, है ना, कि मैं कपड़े बनाने का काम करने वाला हूँ, बड़ी बड़ी मशीन में लगाने वाला हूँ. अब उस केस में क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, कपड़े के लिए मुझे धागा चाहिए होगा, राइट. धागे के लिए भी मे बी पॉसिबल कि अगर इफ द थ्रेड इज नॉट अवेलेबल, मे बी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कॉटन और इटसेल्फ, कि मैं कॉटन से थ्रेड, देन थ्रेड से मैं कपड़ा पूरा बना रहा हूँ. तो क्या मेरे आसपास वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और द सप्लायर्स आर देयर, आर दे नियर बाई लोकेटेड. तो ये एक फैक्टर हो गया कि मेरे सप्लायर मेरे आसपास है या नहीं. दूसरा फैक्टर मैं कह सकता हूँ कि सपोज रोडवे है या नहीं, कि क्योंकि मेरा जो सामान आएगा, मेरा जो माल आएगा या मेरा जो प्रोडक्ट बन के जब जाएगा, तो उसको कम्यूट कराने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डू वी हैव दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल इन द एरिया और नॉट. तो ये मेरा दूसरा फैक्टर हो गया. तीसरा हो सकता है कि ट्रैफिक कंजेशन, की ट्रैफिक कितना रहता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा तो मे बी माई ऑर्डर विल गेट डिलेड, जो मैंने ऑर्डर किया होगा मटेरियल के लिए वो भी डिले आ सकता है. So these are the factors. So this is called dimension analysis. What are the different factors? Some are positive, some are negative. When we combine all these factors, then we will come to know that which one particular location we should select for the purpose of production, right? So this is called dimension analysis. और इस dimension analysis को हम आगे भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे. This is this one. This is the clear explanation for dimensional analysis. So this is in case of new location. And when we talk about the second location, that is called existing organization. So you can see what are the different factors which are prevalent and what are the reason why this need is there for setting up my location for manufacturing in the new area. These are certain reasons. As you can see, there are the 3 reasons in this slide. The first is plant. हाँ बोलिए. So I think there were some disturbance in between. So you can see that the first reason is the plant manufacturing distinct product. इसका मतलब क्या है कि सपोज यू हैव वन प्लांट विच इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं फ्लेक्सिबल प्लांट का, दैट इज मेडिसिन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मा इंडस्ट्री का. कि सपोज यू हैव वन प्लांट जिससे आप टैबलेट बनाते हैं ना, मे बी यू आर मैन्युफैक्चरिंग द टैबलेट्स फॉर हेड एक, स्टमक एक, द डिफरेंट डिफरेंट पेन्स, डिफरेंट डिजीज, है ना, देयर टैबलेट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द सिंगल प्लांट. अब क्या हुआ आगे चल के, दैट योर डिमांड इज इंक्रीजिंग फॉर द डिफरेंट डिजीज रिलेटेड टैबलेट्स.
तो एक टाइम ऐसा आएगा ना व्हेन यू आर एबल टू यूटिलाइज द 100% कैपेसिटी, बट यू आर नॉट एबल टू गेट द ऑर्डर फुलफिल्ड विद द कैपेसिटी विच यू हैव इन योर लोकेशन। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको एडिशनल कैपेसिटी का बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी ऑल्सो एग्जिस्ट कि आप एक पर्टिकुलर, अब आपने क्या किया कि एक फ्लेक्सिबल प्लांट, जैसे मैंने बोला कि टैबलेट के लिए आप टोटल 10 तरह की टैबलेट बनाते हैं, और 10 की डिमांड मार्केट में इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज इंक्रीजिंग, योर मार्केट इज एक्सपेंडिंग। तो क्या अब आप सेम प्लांट से 10 के 10 टैबलेट बनाएंगे? Obviously not. What you will do, maybe some of the production you are going to do with the help of one existing plant, and the other, for other manufacturing, the other tablets manufacturing, you will be thinking that I should set up new plant for the remaining medicines, because your capacity is not matched with the demand, your capacity is less than the possible demand in the market. अब जब आपको नया प्लांट लगाना पड़ेगा, you already have limited space, then you have to find out the location. This is called plant manufacturing distinct plant products. The second is manufacturing plant is supplying to specific market area. अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपके सामने कई सारे एग्जांपल हैं, एफएमसीजी के हम ले सकते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। फूड मार्केट का हम अगर एग्जांपल ले रहे हैं, देन वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ दिस आइसक्रीम का हम एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। सो मेनी एग्जांपल यू कैन टेक दैट वेयर the organization are dedicatedly supplying their product to a specific market area. तो अगर मैं बात करूं कोका कोला का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो आई होप यू आर एबल टू connect or relate that the coca cola plant which is there in the greater Noida, yeah, that is supplying that entire Delhi NCR region. Then you know that the one another plant of coca cola exists in nearby Mathura region, so Mathura, Agra, Aligarh, Hathras, this area is covered by that particular plant. तो what I mean to say here is that जब आपका इंटेंशन ये है कि जब हम एक प्लांट से एक स्पेसिफिक मार्केट एरिया को ही हम सप्लाई करेंगे, तो उस केस में फिर आपके पास डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट लोकेशन का होना जरूरी है, सो दैट इन टोटल यू कैन सेव योर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इन सप्लाइंग दोज गुड्स टू द कस्टमर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स। द थर्ड इज प्लांट एम्फेसाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? कि आप अभी तक सपोज कि यू आर मैन्युफैक्चरिंग वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नाउ योर मार्केट नीड इज इंक्रीजिंग, योर डिमांड इज इंक्रीजिंग, तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि मैं एक से ज्यादा वैरायटी के, जो कि मेरे पास सेम प्लांट है, उसी के जैसे प्लांट से मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, एक ही प्लांट से दो चार तरह के प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अगर मैं दो चार तरह के प्रोडक्ट बनाऊंगा, देन डेफिनेटली आई विल बी एबल टू टारगेट डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर विद इन द डिफरेंट सेगमेंट्स। जब मैं डिफरेंट टारगेट करूंगा सेगमेंट्स में, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांस होंगे ना, बिकॉज द मार्केट डिमांड विल कम, आई विल बी सप्लाइंग दोज डिफरेंट गुड्स टू द कस्टमर। तो जब हमारा प्लांट अभी तक सपोज फिक्स्ड था कि हम एक प्लांट से एक तरह का प्रोडक्ट बनाते थे, बट नाउ स्कोप इज देयर दैट इफ आई विल बी प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली आई विल बी हैविंग डिमांड इन द मार्केट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने फिक्स्ड प्लांट से आप फ्लेक्सिबल प्लांट पे मूव हो रहे हैं, व्हेन यू विल बी मूविंग इन दैट वे, तो आप फिक्स्ड प्लांट को बेच तो नहीं दोगे, you will be utilizing that plant for supplying it single type of product, but for other type of product you are going to settle different plant at different location। तो उस केस में भी फिर आपको different location चाहिए होगा। So these are certain reason, these are some of the reasons that why an existing organization need plant location or the facility location when they are existing one। ठीक है, these are certain reasons। Now we are moving to this, so now I need input from you कि व्हाट डज दिस डायग्राम इंडिकेट, ये मैं पहले आपसे पूछूंगा, देन वी विल बी मूविंग अहेड, ओके। तो जो लोग अभी तक क्लास में, हमारे ऑफलाइन क्लास में जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, दिस क्वेश्चन इज टू देम कि व्हाट यू कैन इंटरप्रेट विद दिस डायग्राम व्हिच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन नाउ। जस्ट इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज गिवन इन दिस डायग्राम। और मेरा क्वेश्चन उनसे है जो हमारे केवल ऑनलाइन क्लास में ही जो स्टूडेंट आ पाते हैं, इफ दे कैन आंसर ऑन दिस, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल बी अलाउइंग यू टू स्पीक। अश्मित, आप तो शायद आते हो ना क्लास में, लेट अदर ऑल्सो ट्राई। अश्मित तो कई बार आंसर दे भी देता है ना, लास्ट क्लासेस में भी यू हैव पार्टिसिपेटेड एट अ गुड लेवल, but I am seeking the answers first, those who were not able to speak because of certain reasons, if they can answer on this। जो स्टूडेंट बताते रहते हैं अभी, पहले उनको मैं पूछ रहा हूँ जो नहीं बताते हैं, इफ दे कैन आंसर ऑन दिस।
Anyone? What you can interpret with this diagram? और ये अभी हमने पढ़ा था ना डायमेंशनल एनालिसिस, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि डायमेंशन कौन कौन से होते हैं जो आपको सोचने चाहिए while you take the decision of plant location selection. So if anyone can answer on this question is to those students who have not participated yet. गानी आप भी बता चुके वही बार, मुझे याद अच्छे से, अंशुमन भी बता चुके हैं. Again I'm saying the one those who have not participated yet in my previous classes also. उनमें से कोई बताएं तो अच्छा रहेगा. ओके पल्लवी. हाँ पल्लवी का मुझे याद नहीं आ रहा है, पार्टिसिपेट करती है शायद पर कम करते हैं ना पल्लवी. चलिए बताइए पल्लवी, इफ यू कैन आंसर ऑन दिस. योर वॉइस इज नॉट Sir, ऑडिबल पल्लवी. this हाँ बोलिए. sorry. So this diagram shows that choosing a plant location, it depends on various factors, which I can see are broadly divided into general factors and specific factors. And then general factors, they are further divided into uncontrollable factors which cannot be changed probably, which is like government policy, climatic conditions, supporting industries, community attitude, and community infrastructure. So maybe because these are external conditions and a company must uh, adjust according to them and not really control them. Secondly, sir, what I can see is that there are controllable factors which seem that they can be managed, which are as proximity to markets, supply of materials, transportation facilities, infrastructure availability, labor and wages, external economies, and capital. So, what I infer out of all this is that since these are internal factors, companies can choose locations based on these to reduce their cost and increase efficiency. And as far as specific factors are concerned, sir, these are very dominant uh, because they are specific, obviously, and others tend to tend to be secondary. What I can infer through this diagram. That is all, sir. Okay, very well. You have explained that what does it mean, what you can interpret. Very well said. Very well explained by you, Pallavi. And in case, just a small addition that what you said for specific factors, that these factors are specific to their different type of organization. है ना, जो जैसा आप देख सकते हैं कि दो हेडिंग है यहाँ पर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, द सेकंड इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. So for All right, sir. manufacturing organizations, what are the different dominant factors? Dominant factors are those which you can't ignore. Their presence is must. यानी वो तो आप उनको मिस कर ही नहीं सकते. If any of the factor is missing, you may be having more cost for your production. As simple as that. Secondary factors are those factors which you can ignore. Suppose if the presence is there of this factor, well and good. लेकिन अगर ये प्रेजेंट भी नहीं है तो आपका डिसीजन पर इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे डू नॉट एड मच कॉस्ट. So in that way we can define these two factors. What do we mean by dominant? Dominant are primary, which are essential for that type of organization, like for manufacturing, for service. And secondary, if they are present, well and good. Not present, no issue. We can take the same decision. We can remain stick to the decision which we are going to take. In that way we can define them. And very well said about these general factors. General factors are those which are common for both the type of organization. Like, we have already discussed in the previous first class that there are always two type of organization. That one, those who are product centric. The second is those who are service centric. तो ये जो फैक्टर आपको दिए हुए हैं लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम अंडर द हेड ऑफ जनरल फैक्टर्स, these are common for both the type of organization, right? And these factors are also divided into two parts. One is uncontrollable factors, and the second one is controllable factor. So as Pallavi said, that the uncontrollable are those which we have to accommodate. We can't change them, we can't control them, and according to the factors we have to change our decision. हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसा मैं एक एग्जांपल अभी यहाँ से लूँ तो लाइक दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ द कंपनी कांट चेंज द पॉलिसीज. आपका जो जीएसटी, सपोज यू आर फॉलोइंग इन 12% स्लैब, you are in 5% slab, तो आप वहीं रहेंगे. You have to pay those taxes. You can't
टेक दिस डिसीजन कि नहीं हम यहाँ पे नहीं करेंगे इन टैक्सेस को, है ना। यू हैव टू अबाइड बाय दोज रूल्स विच आर देयर। कई बार आप देखते हैं कि एक सपोज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आपको एक लैंड दिख रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, बट यू नो इफ दैट लैंड इज रेजिडेंशियल, you can't have your location over there even if you have capital to pay. If you have location over there, है ना, then that way also the seller is ready to sell, but you can't have your operational activities in the residential area, as simple as that. You can't change the rules. So this is called government policy that you can't control, you have to be according to those factors. और सेकेंडली जब हम देखते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर मींस बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स वी कैन कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। जैसे अगर मैं इसमें अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, सप्लाई ऑफ मटेरियल। अब हम जानते हैं कि जैसे कार कंपनी होती है ना, असेंबली दे डू इन देयर लोकेशन। तो उस केस में अब हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो मटेरियल सप्लायर होते हैं उनको थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन एज एन ओनर वी कैन टेक द डिसीजन दैट वेदर वी शुड बी नियर टू द सप्लायर्स or we should be far away from the supplier. This is wholly and solely the decision need to be taken by the owners of the company. और आप जानते हैं कि जितना आप पास इन ऑर्गेनाइजेशंस के जाएंगे उतना ही महंगा आपका लैंड कॉस्ट होगा, बिकॉज दैट लैंड विल बिकम प्राइम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन. So in that way, you have to take the decision where we can have our location for the purpose of those car assembly, whether it should be near to the suppliers or it should be far away from the suppliers. As simple as that. So that decision we can control. In that way, we are saying that these factors comes under the head of controllable factors, right? So now we will discuss these factors one by one. Like in uncontrollable government we have already discussed. हम इसमें कई सारे एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जो मैंने बताया जीएसटी वाला। रेजिडेंशियल लैंड है तो वहां पर आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। सपोज यू हैव फार्म लैंड, या और हम उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड। इट इज द सेलर इज रेडी टू सेल, द फार्मर इज रेडी, है ना, यू गॉट द मनी टू बाय दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, बट यू कांट डू द प्रोडक्शन बिकॉज दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, whether we can do some operational activity over there or not. For that you have to change the status of the land also, like from agriculture, is it possibility that we can get it as a commercial land? So these things are there, like law you have to follow, which whatever it is applicable on your side. Similarly, we have discussed this in the our offline classes also. Like we know that sometimes the organization have their SEZ, special economic zones. You know the benefits over there, like 0% tax, 0% duty you need to pay, no taxes over there at that particular place. So in that kind of location, if now you have to compare cost versus benefit, कि वो location पर if you are going to set up your location, then whether it will be beneficial for you or not. If it is beneficial, you can take the decision. तो गवर्नमेंट पॉलिसी कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया को ही वो SEZ अनाउंस करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि नहीं मैं इसके 1 किलोमीटर पास ले लेता हूँ, मैं उसको वो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट हैव दिस स्पेशल प्रोविजन फॉर दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन only. You have to buy the piece of land over there. You have to utilize those land in that particular premises only within the zone only. Second are them climatic condition. Climatic condition, if I give you an example of climatic condition is this like if I would like to set up a factory for ice cream, है ना, and I'm looking forward to have these, just a second. Yes. So if I say that now in the region of हम ले सकते हैं यहाँ पर हिमाचल, in the region of Jammu and Kashmir, in the region of Ladakh, the land is very very cheap, very conveniently you can buy the land, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि लैंड की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, है ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आएगी बिकॉज वहां पर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत कम है, तो यू विल बी एबल टू इजिली गेट द लेबर अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। सो बट यू कैन इमेजिन कि जब वहां पर इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दोज आइसक्रीम, अब उसको वहां पर कितना सेल मिलने वाली है, यू कैन इमेजिन ना। दैट इज द वी कैन से द कोल्ड एरियाज आर देयर, द winters always there most of the time. In those area if you are going to set up the factory, then there is the more we can say the market for these ice creams. Where are the most of the consumers? We know that we come to the Haryana. अगर मैं उत्तरांचल या हिमाचल से बात कर रहा हूँ, तो वहां से अगर हम देखते हैं तो नियर बाई जो आपके पड़ेगा दैट मे बी द पंजाब, योर हरियाणा, योर दिल्ली, NCR, यूपी, मध्य प्रदेश, दीज एरियाज आर देयर।
So now you can imagine ki how much your cost will come for transporting your goods, your product to the consumer market. So you can't have those piece of land in that particular location because of climatic condition is affecting your supplies, your demand in that particular market. Similarly, we can take the example of cold drink. हम विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सोचें कि विंटर के कपड़े का डेडिकेटेड यूनिट नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप नाउ वी विल बी हैविंग इट इन द हरियाणा you know that only 2 months we have to wear those clothes one mostly maximum up to 2 months but for rest of the 10 months then again the problem will come so you know that these winter clothes are getting manufactured in the region of maybe you can take the north or you can go to the south because in south you may have the pleasant weather comparatively to the Madhya Pradesh, Haryana, Bihar and these Uttar Pradesh and most of the region of India. So climatic condition, what I mean to say here is that you have to consider this climatic condition factor. If it is more relevant in your case, like your product is as such where that weather is impacting more. अब इसमें कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं आप एयर कंडीशनर का एग्जांपल ले लीजिए कूलर पंखे का एग्जांपल ले लीजिए तो वेदर वी कैन हैव द फेवरेबल कस्टमर ग्रुप्स if you are nearby those areas then good for you otherwise it will be very much costly for you right coming to the next factor that is supporting industries अब supporting industries से मतलब क्या है कि you know that you can't control the industries है ना you are just a small part of the industry तो जहां पर आपकी supporting industries हैं जहां आपके supporting suppliers हैं you can't control their location but you have to take your wise decision whether we should have the location nearby to our supporting stakeholders the fourth is community attitude community you know the society की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको क्लास में दिए हैं टाटा का सिंगूर प्लांट का एग्जांपल हम कई बार लेते हैं इस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए कि वहां पर गवर्नमेंट की परमिशन थी वहां पर टाटा जो कंपनी थी फॉर द नैनो है ना असेंबली टाटा ने वहां पर पैसा भी पे किया हुआ था लैंड को भी एक्वायर कर लिया था बट यू नो दैट द सोसाइटी है ना द नियर बाई फार्मर्स दे वर नॉट रेडी टू सेल देयर पीस ऑफ लैंड विलिंगली है ना गवर्नमेंट ने उनसे करवाया था बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम ए मूवमेंट एंड यू नो द रिजल्ट कि वहां से टाटा को फिर अपने गुजरात में वहां पर सेटअप करना पड़ा उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ना पड़ा सिमिलरली यू नो देर आर सो मेनी केसेस ऑफ दिस सबसे पहला हमने अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब एक फॉरेस्ट को है ना डिफॉरेस्टिंग की जा रही थी इन द एरा व्हेन द ब्रिटिशर्स वर हियर तो एक आपने नाम सुना होगा चिपको आंदोलन है ना तो फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दे वर गोइंग टू डिफॉरेस्ट ए सर्टेन एरिया बट देयर जो वहां के जो आदिवासी लोग थे जो वहां रहा करते थे उन्होंने क्या किया था वो पेड़ों से जाके चिपक गए थे है ना कि जो लोग उन पेड़ों को ना काटें इस तरह का उन्होंने वहां पर मूवमेंट किया था so what I mean to say over here is कि you all have to take the consent of the society also. If the society is not with you, forget about rest of the factor whether they are in favor of or not. If this factor is not there, definitely you will be in trouble while you are going to set up your location in those areas. The next is community infrastructure. What does it mean? Like your roadway, transportation facilities, your we can say these pipelines, your electricity, whether these things are available in that area or not, where you are going to set up your location. अगर ये हैं, तो you are able to set up your location very easily. You need not to waste more money on setting up the lines for these things. अब ऐसा तो नहीं है ना कि suppose if I say in the desert area land is very cheap, we can have location over there. लेकिन वहां पर तो रोडवे नहीं है आप कैसे अपने ट्रक्स को वहां लेके आएंगे फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर द डिफरेंट मटेरियल एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर फाइनल गुड्स टू द कंज्यूमर मार्केट्स तो अब ऐसा तो नहीं ना कि अब हाईवे में बनाने वाले हैं कि 20 किलोमीटर अंदर आपको रेगिस्तान में जगह बहुत सस्ती मिलने वाली है हम वहां पर ले लेते हैं तो आप ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि आप वो 20 किलोमीटर की रोड नहीं बनाने वाले है ना चलो आपने ये डिसीजन भी ले लिया कि रोड बना लेंगे एक इमेजिनरी हम सिचुएशन ले रहे हैं लेकिन नाउ द वाटर लाइंस पाइपलाइंस योर एनर्जी whatever is required like electricity maybe coal for the heat treatments are you going to set up these lines separately so can you imagine that how much burden will be there in terms of finance so obviously you are not going to set up these things over there as a company right so wherever these factors are present better to have location in those areas now we come to the controllable factors proximity to market कि हम ऐसी लोकेशन लेंगे जो मार्केट से इजीली अप्रोचेबल हो
हम क्विक वे में whenever the demand will come from the market easily we can supply, then decision, these kind of decision a company may take very easily. The second is supply of materials. सप्लाई ऑफ मटेरियल हमने डिस्कस किया ही था कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो हमें डिसीजन ये लेना है कि हम उस पर्टिकुलर, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कई बार कि जो आपका फरीदाबाद है, वहां आप चले जाइए ग्रेटर फरीदाबाद, या हम सेक्टर 6 फरीदाबाद का हम अगर एग्जांपल लेते हैं, देन दे आर नोन फॉर द ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कि वहाँ मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरर्स आर देयर। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी कार असेंबली यूनिट्स हैं इन द एरिया ऑफ गुड़गांव भिवानी, वो वहीं पर क्यों है? क्योंकि दैट इज द नियरेस्ट एरिया फॉर दी सप्लायर्स। तो यहाँ पर अगर आपकी लोकेशन होती है देन यू विल बी एबल टू सेव योर कॉस्ट, अदरवाइज दिस कॉस्ट विल इंक्रीज। कि मैं ये सोचूं कि नहीं मैं तो आगरा में जाके सेटअप कर लेता हूँ, मुझे पार्ट्स यहाँ मिल जाएंगे, तो यू कैन इमेजिन कि हर बोल्ट के लिए, हर नट के लिए, कार के बड़े पार्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, आपको उनको मंगाने के लिए भी कितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो फ्रॉम फरीदाबाद टू आगरा यू कैन इमेजिन इट इज 200 किलोmeters। So for each consignment 200 kilometer run will be there. The cost will be jumped for your overall production, in the overall production cost. The next is transportation facility. तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे हम जानते हैं कि सपोज योर मैन्युफैक्चरिंग इज एज सच वेयर द रोड कनेक्टिविटी इज एसेंशियल, लेकिन क्या हमें ये भी देखना चाहिए कि अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं, है ना? तो आपका चाहे वो मेन हो चाहे ऑल्टरनेटिव जो आपके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यू हैव टू चेक वेदर दे आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन और नॉट। इफ दे आर अवेलेबल यू कैन बेटर सेट अप योर लोकेशन ओवर देयर। इफ नॉट अवेलेबल यू शुड नॉट टेक डिसीजन टू सेट अप योर लोकेशन इन दैट सच एरिया। जैसे मैंने अभी रेगिस्तान का एग्जांपल दिया, या हम ले लेते हैं कोई सी शोर के आसपास हम जगह मिल रही है वहां ले लेते हैं, पता चला देयर विल बी वन वे व्हेन इट इज टेकिंग अवे ऑल द थिंग्स फ्रॉम योर कंपनी। So better to take the decision where we can have our main medium of transportation and alternate medium of transportation if they are available, better for you. The next is infrastructure availability. अब यहाँ पर हम इंफ्रा की बात कर सकते हैं कि आपके लिए जो आपके जहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, जो आपके वर्कर काम करने वाले हैं, उनके लिए आपके पास जो अदर अदर फैसिलिटीज चाहिए, क्या वो वहां पर अवेलेबल है? If they are available you can get the talent workforce over there. If it is not available, the people will not be ready to work in your location, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। The next is labor and wages. If your area is as such where more labor is easily available, the labor supply is sufficient enough, तो फिर वहां पर आपको वेजेस भी कम पे करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे एरिया जहां पर ये लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, इन दोज एरिया यू हैव टू पे मोर टू गेट द लेबर। So your effort should be in such a direction that where you can get these labor supply easily. और ये कहाँ चाहिए होगा? जहां पर आपकी लोकेशन लेबर इंटेंसिव है इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में ये जितने भी फैक्टर हमने डिसाइड, ये अभी जब हमने पढ़े हैं, है ना, द ऑल द फैक्टर्स which we have explained so far, combining all these factor together you have to check whether the location you have selected, जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें उस लोकेशन पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना, तो आपको ये कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि वेदर दैट लोकेशन इज सुटेबल फॉर मी और नॉट। इफ नॉट, find the new location, find the other locations. If it is suitable, then you can set up your plant in that particular location only. And capital, because you know for this acquisition of land for setting up the plant you need capital also, है ना, मनी आपको चाहिए होगा, तो पैसे की आपको अवेलेबिलिटी अरेंज करनी होगी कि आप कैसे उसको अरेंज करते हैं, कहाँ से करते हैं। यू नो देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज that in the form of debt we can take it from the banking, non-banking financial corporations. In form of equity we can issue our IPO, we can issue our shares, and we can get the money from the share market. It is your choice whether how you are going to arrange the capital, but the capital availability has to be there while you are going to plan to have separate location, or we can say the additional location for your existing organization. नाउ कमिंग टू दी स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि देर आर द फैक्टर्स, सम फैक्टर्स आर डोमिनेटिंग इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, some field are dominating in the field of services, some factors are secondary, or we can say the ignorable factor in the field of manufacturing as well as services. So these factors are, now you can see,
इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बार देख लीजिए, हैव अ क्विक लुक इनटू दीज फैक्टर्स। अब इसमें से हम कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर भी चुके हैं। So I hope you have gone through with these factors like favorable labor climate, हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर का होना बहुत जरूरी है ना। सर्विस में लेबर नहीं चाहिए होती है, सर्विस में ऑलवेज यू नीड एम्प्लॉयज बिकॉज यू हैव फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव, दोज हु आर स्किल्ड, दोज हु आर वेल एजुकेटेड। बट इन केस ऑफ प्रोडक्शन, मे बी समटाइम्स यू नीड वी कैन से द लिटरल अनस्किल्ड लेबर ऑल्सो, है ना, सेमी स्किल्ड लेबर। तो यहाँ लेबर का ज्यादा रोल होता है वेयर वी हैव लेबर इंटेंसिव यूनिट्स। तो ये अगर सस्ता नहीं मिल रहा है आपको, रीजनेबल नहीं है, देन बेटर नॉट टू हैव लोकेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आपको ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पर लेबर इजीली अवेलेबल हो जाए। प्रॉक्सिमिटी, अब इस तरह से आप देख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज फैक्टर्स, तो नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, क्योंकि प्रोडक्ट आपने बनाया है, बार बार मार्केट में सप्लाई करना होगा। इफ इट इज अवे फ्रॉम द मार्केट, अगेन मोर कॉस्टली फॉर यू। Quality of life, what does it mean कि in your location your maybe hundreds and thousands of workers will work over there, hundreds of employees will be there who are working in your organization। तो उनके लिए जो आप जिस लोकेशन को सर्च करने वाले हैं वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है ना, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं नियर बाई लोकेशन में, उनको जो डे टू डे बेसिस पर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, आर दे इजिली अवेलेबल इन दोज एरियाज और नॉट। इफ नॉट, देन द अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेस, क्योंकि ऐसी जगह है जो आपका बहुत इंटीरियर है, लोग वहां आना नहीं चाहेंगे काम करने के लिए। तो you have to look into this factor also, whether in the nearby vicinity do we have this quality of life for our worker and employee. If it is there, good for you. If it is not there, then again the problematic for the company. The next is proximity to supplier and resources, utility, taxes and real estate cost। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इंक्रीज होंगी इन केस ऑफ प्रोडक्शन सेंट्रिक यूनिट। एंड द नेक्स्ट इज, अब देखिए सेकेंडरी फैक्टर्स। रूम फॉर एक्सपेंशन, जैसे आप जानते हैं कि सपोज इफ आई एम, आप अब मैं आपके एक नॉर्मल, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि सपोज व्हेन योर फादर बॉट एन होम, या आप सपोज आप में से कुछ लोग वर्किंग हैं वो भी घर अगर वो प्लान करते हैं लेने के लिए, आप लोग प्लान करते हो कि हम एक घर खरीदेंगे, तो क्या हम ये सोच के चलते हैं कि आगे चल के हम 5 साल बाद 10 साल बाद हमें यहाँ एक्सपेंशन करना हो, है ना, लैंड और चाहिए होगी तो हमें इजीली मिल जाएगी, क्या हम ऐसा कोई जगह ढूंढते हैं क्या? नहीं ढूंढते ना। हमें जितना पता है कि भाई हमें 200 गज का घर चाहिए, 500 गज का चाहिए, 1000 का चाहिए, वट एवर इज योर डिजायर, हम उसको फाइनल करके चलते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए। तो रूम फॉर एक्सपेंशन, इट इज सेम एप्लीकेबल इन द फील्ड, इन द केस ऑफ कंपनीज ऑल्सो, द फैक्ट्रीज ऑल्सो, कि जब आप एक फैक्ट्री को सेटअप करते हैं, यू नेवर थिंक कि वहां पर एक्सपेंशन के लिए आज से 10 साल बाद 15 साल बाद लैंड बचेगा नहीं बचेगा। बिकॉज व्हेन द एक्सपेंशन विल बी रिक्वायर्ड, व्हाट यू विल डू, you will be trying to find out the location nearby your location, or maybe away from the location to serve the different market altogether। तो रूम फॉर एक्सपेंशन अगर है वहां पर, अच्छी बात है, नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। दिस इज व्हाट आई मीन टू से ओवर देयर। द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब आप सोचिए कि जो आपकी ब्रिक्स आती हैं, सीमेंट आते हैं, क्या इनकी कॉस्ट में एरिया टू एरिया कोई डिफरेंस होता है? बहुत ज्यादा, हार्डली ए डिफरेंस इज देयर। तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हल्का फुल्का अगर अंतर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी टू मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय अ सेकेंडरी फैक्टर, राइट? अब जैसे मैं इसको अगर डिफाइन करूं कि जैसे सपोज एज आई सेड, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, है ना, कि कोका कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, तो इनके लिए मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? दैट इज रोडवे। कि रोडवे से ही इनकी जो बॉटल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, आपने देखा होगा ट्रक में जाती हैं। तो क्या इनको जरूरी है कि वो एयरपोर्ट भी इनके नियर बाई होना चाहिए? क्या इनके लिए जरूरी है कि पाइपलाइन वाला ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी बात है। नहीं भी होंगे तो उससे कोई फर्क आपको खास पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज योर मेन medium of transportation is easily available, which is road connectivity. The next is the cost of shuffling people and material between plants. इसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे? Anyone can explain? Just raise your hand. Who will explain this? Okay, Ashmit. Yes, Ashmit, unmute and speak. Her thought of shuffling people and materials between plants means कि जैसे थॉट का सफल होता है, मतलब पीपल और मटेरियल के बीच में। What do you want to say, Ashmit? Please clear it. Explain clearly. Sir, actually, I do not understand what is the meaning of shuffling. ठीक है, तो आपने अभी लिसन किया था तो मुझे लगा कि आप बताने लगे हो। ठीक है, अभी उस पर आएंगे। ओके, नेहा इज गोइंग टू elaborate this. नेहा, you can speak. Unmute and speak. नेहा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अभी म्यूट हो, So अनम्यूट करो now, फिर बोलो। yes, sir. हाँ, So yes. cost of traveling. तो ये क्या है, मतलब ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर लाइन जो है, इट इज कॉस्ट ऑफ शफलिंग पीपल एंड मटेरियल बिटवीन प्लांट्स, व्हाट डज इट मीन? So if there's other plant for the same product ओके, manufacturing, then if people are involved to for traveling the products, and so travel expense or some vehicle is given for the things. ओके, ठीक है, गुड। एंड पल्लवी, पल्लवी also want to say something on this. Yes, Pallavi. Sir, basically it refers to the operational costs of moving labor, raw materials, or such components of finished goods, which back and forth between different facilities, like it could be factories, warehouse, or processing units of the same company. ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, आई होप द मीनिंग इज क्लियर दैट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सपोज, अगेन आई एम जस्ट इलाबोरेटिंग इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि जब हमारे पास सपोज कि वी हैव टू डिफरेंट सेंटर्स ऑफ शन, है ना, मे बी अवे 10 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर्स। तो अगर आपके पास, अब कई बार क्या होता है कंपनी, आपने देखा होगा कि देर आर द पीपल दोज हु आर ऑन बेंचेस, ऑन बेंचेस। व्हाट डज इट मीन? कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो ओवर हो चुके हैं, अब उनके पास फिलहाल कोई काम करने के लिए नहीं है। So if you have these kind of workforce, then definitely you can send these workforce to the location where the people are required. तो इससे क्या होता है, एक तरह से हम इसको एक है ना बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ रिटेंशन स्ट्रेटजीज, कि आपने अपने एम्प्लॉय को जो अभी एक जगह पर काम के नहीं है उनको ना निकालते हुए, व्हाट यू डिड, यू आर यूटिलाइजिंग देम टू द अनदर लोकेशन वेयर द पीपल आर रिक्वायर्ड। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ शफलिंग द पीपल। ऐसे ही हम मटेरियल की बात करेंगे कि सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, और मे बी द सेम प्रोडक्ट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, बिकॉज यू वांट टू सर्व द स्पेसिफिक मार्केट एरियाज। अब एक लोकेशन पर आपके पास मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, विच इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड ऑन द लोकेशन, और दूसरी लोकेशन पर उसी मटेरियल की अभी स्कैरसिटी है। तो इफ द लोकेशन इज नियर बाय, व्हाट यू कैन डू, यू कैन शफल those material, you can send those material to the location where it is required. तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब दो लोकेशन आपकी आसपास होंगी।
तो अगर ऐसा पास पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू नो दैट हार्डली इट मैटर्स कि आप कहीं किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट ज्यादा होता है या मटेरियल ज्यादा होता है तो दूसरी में आप यूज करने की सोच के आप प्लांट लेते हैं, ऐसा आप नहीं करते हैं। बट इफ इट इज देयर कि नियर बाई है, देन यू कैन डू दिस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज तो आपको देखना पड़ेगा कि वो ऐसा तो नहीं है कि दोनों ब्रांच 200 किलोमीटर पे हैं और हम 2 किलो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। इफ इट इज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यू कैन डू, बट इफ इट इज नॉट यू कैन डू दैट। तो अगर ऐसा है, कॉस्ट ऑफ शफलिंग पीपल एंड मटेरियल लेस आएगी, तो आप इसको यूज कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो यू विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, यू विल बी परचेसिंग द मटेरियल अगेन फ्रॉम द सप्लायर विच इज नियर बाय, इन दैट वे यू विल बी एबल टू डू दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके डोमिनेंट फैक्टर आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ लोकेशन ऑन सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आप जानते हैं कि ये जो सर्विस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसमें अगर हम इमेजिन करें तो होटल का एग्जांपल, हॉस्पिटल का एग्जांपल, सैलून का एग्जांपल, रेस्टोरेंट का एग्जांपल, यू कैन नेम एनी। कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन होती है, अब जैसे रेस्टोरेंट आप सभी लोग जाते होंगे है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ब्रदर के साथ, कलीग्स के साथ। तो जब आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वेयर यू आर गोइंग टू थ्रो ए बर्थडे पार्टी, है ना, या किसी की कह सकते हैं कि वर्क एनिवर्सरी है, किसी का रिटायरमेंट है, फेयरवेल है, व्हेन यू या हम कहते हैं कि स्कूल ये कॉलेजेस में आजकल फ्रेशर पार्टी होती हैं, तो व्हाट वी सी कि वो लोकेशन कहाँ पर है, हाउ मच प्राइम लोकेशन इट इज। तो जितनी प्राइम लोकेशन होगी वहां पर आप उतना ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं, और जितनी वो सब प्राइम होगी उतना ही वहां पर आप कम पैसा भी देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल इसके आप ले सकते हैं, जैसे सपोज यू विल गो टू, अगर हम बात करें अपने नॉर्थ की, हम बात कर लें कि सपोज यू आर गोइंग टू ए सैलून which is there in the NSP Pacific Mall, it will be charging more than the other salon of the same brand in the other locations। तो ये किसका फर्क पड़ रहा है? लोकेशन का, कि वो प्राइम लोकेशन पर है, बाकी उतने प्राइम लोकेशन पर नहीं है। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ होटल्स, यू नो दीज 5 स्टार होटल्स, है ना, चाहे आप ताज का नाम लीजिए, अगर दिल्ली की बात करूं तो द ललित का नाम लीजिए, रेडिसन के नाम ले लीजिए, यू विल सी देयर लोकेशन इज एज सच, जहां पर आपको घूमने फिरने की जो मेन लोकेशन है दिल्ली में, वो बिल्कुल नियर बाई होंगी ऐसे होटल्स के। इसीलिए वो 5 स्टार वो इतना ज्यादा वो चार्ज करते हैं, एंड यू आर हैप्पीली पेइंग ओवर देयर। तो इम्पैक्ट ऑफ लोकेशन ऑन सेल्स एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज पॉजिटिव ऑलवेज, कि जितना प्राइम उतना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल हाई भी होगा। प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स, यानी कस्टमर वहां तक कितना इजिली अप्रोच कर सकते हैं, उनको वो रास्ते लोकेशन इजिली मिल जाती है, नहीं मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर। द थर्ड इज लोकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कंपटीटर अगर आपसे जितना ज्यादा दूर होंगे फ्रॉम द सर्विस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, उतने ही ज्यादा कस्टमर आपके पास आने के चांसेस भी होंगे, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो इन सम ऑफ द नेचर ऑफ वी कैन से द बिजनेसेस, यू विल सी कि जब कंपटीटर आसपास होते हैं तो वहां पर जो आपके, हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स के आने के चांसेस होते हैं वो बढ़ भी जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ कंपटीटर कई बार वो अच्छी भी होती है, कई बार वो दूर होना अच्छा होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ बिजनेस यू हैव टू डिसाइड कंप्यूटर हमें कैसे चाहिए, पास चाहिए या दूर चाहिए, accordingly you can select your location। The secondary factors are retailer also must consider the residential density, यानी कि जैसे अब ये भी आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल डेंसिटी की, तो ये किस किस टाइप के इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप देखते हैं सर्विस सेंट्रिक में, रेस्टोरेंट आप देख लीजिए, डिस्क आप देख लीजिए, पीवीआर आप देख लीजिए, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लेक्स, आप देख लीजिए, मॉल्स आप देख लीजिए, हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए, एवरीवेयर यू विल सी द रेजिडेंशियल डेंसिटी जितनी आपके पास होगी उतना ही बेटर इट इज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड साइट विजिबिलिटी, अब साइट विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि वो लोकेशन आपकी दूर से दिख जाती है नहीं दिख जाती है। तो अगर दूर से दिखने वाली लोकेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिल रही है तो आज की डेट में इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू नो कि ये जो मैप्स हैं, है ना, क्यूआर कोड्स होते हैं आपके पास, साइनेज आप यूज करते हैं, इंडिकेटर्स आप यूज करते हैं ऑन रोड्स, जिससे आपके कस्टमर इजिली आपको लोकेट कर लेते हैं। तो इफ इट इज देयर गुड साइट विजिबिलिटी ऑप्शन, नहीं भी है तो इससे आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अश्मित, यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई थिंक यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस Sir, what is the meaning of signage? साइनेज का मतलब होता है, जो आपने देखे होंगे, आपने कई बार बोर्ड देखा होगा ना कि इस पर्टिकुलर अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये इसका वे यहाँ से है, तो वो जो जगह जगह आपने उसके कटआउट्स या होर्डिंग्स लगे देखे होंगे, आपने खंबे पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो होते हैं वहां लगे हुए देखे होंगे ना, तो वो Yes, आपको sir. बताते हैं कि रास्ता किधर से है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
Okay, sir. Fine. Any other question related to what we have discussed so far? Anyone can ask any question. कैसा भी हो पूछ लीजिए. Waiting for 1 minute if you have any question related to this. So I think there is no question. So now moving ahead. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, they have already done that these questions. Now to those who are joining online only, so we will be having these questions again. And you know that as I said that there are so many factors. तो हमें ये लगेगा कि कुछ फैक्टर्स तो हमारी लोकेशन पर पॉजिटिव है, कुछ फैक्टर्स, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर नेगेटिव ऑन आवर लोकेशन. तो हाउ डू वी डिसाइड that which one particular location is better for our manufacturing purposes? तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं जिसके बेस पर ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन आपके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी. और ये कब आप अप्लाई करेंगे? जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर लोकेशन सिलेक्शन, राइट? So now first is factor rating. In this question, you can see what is given over there. The steps are given to calculate that how do we calculate the things in this particular type with the help of this method. इसमें हम केवल इनके थ्रू नहीं जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है. What we will do, we will be doing the numerical and we will come to know कि हम कैसे इस numerical को solve करते हैं. तो these are very simple numerical. Just give some attention on this and you will be able to solve these question also. ठीक है. और ये क्वेश्चन में आने के भी चांसेस, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके समटाइम्स दे कम्स इनटू द एग्जामिनेशन आल्सो, और प्रीवियस पेपर्स प्रीवियस ईयर्स में ये आए भी हैं, है ना. सो प्लीज पे अटेंशन कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो फैक्टर रेटिंग इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी. फर्स्ट जस्ट गो थ्रू विद दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, समझिए क्या दिया हुआ है, देन वी विल सॉल्व दिस वन. तो जो आप टेबल अगर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फैक्टर की रेटिंग दी हुई है, यानी हर फैक्टर की क्या रेटिंग है. तो रेटिंग से ये क्लियर होता है कि यू कैन सी, अगर मैं ये 5 फैक्टर हैं, सपोज मुझे इनके नाम समझ में भी नहीं आ रहे, ये मान लेते हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं देखता हूँ इस हॉस्पिटल के केस में, मेडिकल फैसिलिटी हेल्थ केयर जो लोकेशन दिल्ली में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनके पास ये 2 पोटेंशियल साइट्स है. ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 2 पोटेंशियल साइट्स आर गिवन, लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2. अब फैक्टर रेटिंग दी हुई है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. Like if I look into this location factor and factor rating, तो मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि इन सारे फैक्टर में जो 5 फैक्टर दिए हुए हैं, फैसिलिटी यूटिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अमंग ऑल, राइट. सेकंड फैक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है? दैट इज एवरेज टाइम पर इमरजेंसी ट्रिप. तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. अब देखिए लोकेशन वाइज, तो लोकेशन वाइज जिसकी रेटिंग ज्यादा है ना, वो उस पर्टिकुलर फैक्टर पर ज्यादा प्रेफर किया जाएगा. जैसे अगर मैं देखता हूँ फैसिलिटी यूटिलाइजेशन, तो आप देख सकते हैं कि लोकेशन 2 इज मोर इंपॉर्टेंट देन लोकेशन 1. सिमिलरली यू कैन सी कि जो हमारा मोस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, एवरेज टाइम पर इमरजेंसी ट्रिप, इसमें भी हमें दिख रहा है कि लोकेशन 2 की रेटिंग 5 है और लोकेशन 1 रेटिंग इज 4. तो ऑब्वियसली लोकेशन 2 इज मोर प्रिफर्ड. अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पर, जो है टोटल पेशेंट पर मंथ 5 रेटिंग दी हुई है. तो नाउ यू कैन सी लोकेशन 1 ज्यादा अच्छी हो गई है. तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए हम इस फॉर्मूला को, इस मेथड को यूज करते हैं कि कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स एंड देयर रेटिंग्स, which particular location is best for manufacturing, that we will find out. तो हम इसमें क्या करेंगे, that we need to multiply. अब देखिए पहला स्टेप हमें क्या करना है
कि जो फैक्टर रेटिंग दी हुई है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लोकेशन 1 की रेटिंग से, एंड देन सेकंड स्टेप विल बी मल्टीप्लाई फैक्टर रेटिंग विद लोकेशन 2 वैल्यू। तो इसके दो सेपरेट कॉलम बना लीजिए। मैं यहाँ कॉलम बना देता हूँ एक बार, ठीक है, सो दैट वी कैन टुगेदर सॉल्व। तो नाउ यू कैन डू FR into L1, ये हम कर लेंगे। तो देखिए 8 3 24, आई होप इट इज विजिबल टू यू जो मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सेकंड आएगा 20, 5 into 4 20, थर्ड इज 6 4 24, 3 1 3 एंड 5 5 25। तो दिस इज FR into L1, ये आप लिख लीजिएगा कॉलम के ऊपर, FR into L1। अब हम करेंगे FR into L2। इट इज 8 5 40, 5 3 15, 6 5 30, 3 2 6 and 5 3 15. Now what we will do? We will do the summation. Summation of both the factors you have to do. इसको भी करिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका सम जो आ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी। तो सिग्मा FR into L1 द वैल्यू इज 24 + 20 + 24 कीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 96। और यहाँ हम वैल्यू देखते हैं कि इन सबके फैक्टर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। इट इज 40 15 55 85 85 and 6 91 and 15, इट इज 106। तो टोटल रेटिंग के बेस पर जब हम देखते हैं व्हाट वी फिगर आउट, हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टोटल रेटिंग है वो किस लोकेशन की ज्यादा आ रही है, इट इज विद लोकेशन 2। तो हमें ये लाइन है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूँ कि आपका आंसर यहीं पर नहीं आ जाता है जब आपने वैल्यू निकाल दी, यू हैव टू राइट ऑल्सो। क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच इज बेस्ट लोकेशन बेस्ड ऑन फैक्टर रेटिंग मेथड। आपको ये बतानी भी है विद रीजन कि since the total rating score is higher in case of location 2, that is 106, full stop, therefore we will select location 2 for setting up new medical facility healthcare in Delhi region। ये लाइन जरूर हमें लिख के आनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर समझ में आया हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसके जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है फैक्टर रेटिंग इनटू L1, second step is factor rating into L2, third step is summation of both the values which you have calculated, sigma FR L1 and sigma FR L2। अब इनमें जिनका स्कोर ज्यादा होगा that location you are going to pick for setting up your location, as simple as that। क्योंकि रेटिंग हिसाब से जो वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है इन कंपैरिजन। एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम एनीवन? So I am hoping that this method is clear to everyone. Now moving to the next method. This is also identical, almost identical to this method which we have covered, which we have discussed. अब इसके पहले, before moving into this second method, now I will be giving you one question that you need to solve. ये विजिबल है आप सभी की स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि आप कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और उसका क्या स्कोर आ रहा है, ये आपको बताना है with the same method which we have applied in the previous question. With the help of factor rating method, calculate which location, यहाँ दो लोकेशन आपके पास X and Y, which location you are going to pick to purchase a home for a family, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बताइए जल्दी से। Now answer from your side। और जो आपके आंसर आए उसको आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपकी जो दोनों की वैल्यू आएगी, यानी FR इंटू लोकेशन X, FR इंटू लोकेशन Y, इनका टोटल भी लिखिएगा, देन आंसर कि विच लोकेशन यू विल सेलेक्ट एंड वाई।
Yes, Sanank would like to say something. I hope you have calculated this. You can write the answers in your chat box. Yes, Sanank, anything from your side? Yes, sir. Yes, बेटा बोलो. आपने लिखा उसमें? अभी तक मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया. Yes, sir, but I'm not able to write anything in the chat because they said I cannot participate in the chat. बेटा आपकी आवाज समझ में नहीं आई मेरे को. थोड़ा सा या तो माइक्रोफोन पास लाके बोलो. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. So I want to write in the chat box, but I cannot able to write anything in the chat box because they अच्छा बेटा, showing एक्चुअली क्या है ना I कि cannot मैं बता रहा हूँ, participate. इसका रीजन ये है सनक कि आपने ना अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया है. सर अगर मैंने आप उससे ऑफिशियल करते ईमेल तो आप आईडी लिख से पाते. जब भी लॉगिन करती हूँ ना तो लॉगिन नहीं होता, इसलिए मैं इसी आईडी से लॉगिन कर लेती हूँ, लाइक नॉर्मल अच्छा आईडी अच्छा, से. ठीक है. तो आप ये इश्यूज है ना, देखो आपके इस पर वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, इसको ठीक कराओ. या आप इसको जो आपका वो है ना, हमारा जो वो आपके जो क्या कहते हैं उसे, हेल्पलाइन नंबर है, उससे कम से कम इसको जी ठीक सर. करा लो बेटा. नहीं तो आपको दिक्कत हर जगह रहेगी. कई बार क्या होता है कि कई फैकल्टी अलाउ भी नहीं करते हैं क्लासेस में, फिर दिक्कत हाँ आएगी ना. सर, मैंने कई क्लासेस वजह से छूट भी गई हैं. हाँ, मैं बता तो रहा हूँ ना कि होता क्या है ना, कई बार इस तरह के जो जैसे आते हैं ना, जो रिक्वेस्ट आती है ज्वाइन करने के लिए, कई बार उनकी वजह से जी क्लासेस में इश्यू भी आते हैं. इसलिए कई बार लोग प्रेफर नहीं करते हैं इनको मतलब इस तरह की उनको ऐड करना. अब जैसे पल्लवी ने बताया अभी चैट बॉक्स में कि लोकेशन एक्स वैल्यू आ रही है 73, जी सर. लोकेशन वाई वैल्यू इज 66. तो देयरफॉर शी इज सेलेक्टिंग लोकेशन एक्स. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है. ये वेटेड स्कोर नहीं है प्रगति, ये वो पल्लवी ध्यान रखना. दिस इज टोटल रेटिंग स्कोर. अगर आप वेटेड लिख दोगे Yes, तो sir. आपका Total आंसर गलत rating. हो जाएगा. Yes. हाँ, क्योंकि Yes. वेटेड Yes. Total आपका rating. अलग मेथड है. इसको आप लिखेंगे टोटल रेटिंग स्कोर, है ना, ये ज्यादा बेटर है. ठीक है, वेरी गुड. तो ये वैल्यू सभी की आ रही है जिसने किया है अभी तक क्वेश्चन. अश्मित, आपका आंसर क्या आया? नेहा, कृतिका. कृतिका का भी ठीक आ गया है. कृतिका भी बोल रही है कि इट इज ओके. मिताली, पुष्कर, बाकी लोगों का. अश्मित आप बताइए. भी मेरा आ रहा है 73 आ रहा है. ओके, और लोकेशन वाई की वैल्यू? सर वो अभी कर रहा हूँ मैं. इतना स्लो करोगे? करिए करिए. तो आई एम होपिंग दैट दीज आर, जैसे भी कृतिका ने भी इधर से हैंड्स अप किया था कि दिस इज राइट. तो 73 एंड 66 आर योर टोटल रेटिंग स्कोर फॉर बोथ द लोकेशन एक्स एंड लोकेशन वाई. सिंस द लोकेशन एक्स स्कोर इज हायर, therefore location x will be selected for buying a new home. ठीक है. तो इस तरह से ही हमें क्वेश्चन करने हैं. आई होप एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी इजी टू कैलकुलेट. सिंपल मल्टीप्लाई है और समेशन है, एंड यू कैन फाइंड आउट योर आंसर्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज वेटेड फैक्टर रेटिंग. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. तो इन दिस द ओनली चेंज इज दैट कि यहाँ पर जो अभी हमें फैक्टर रेटिंग दी हुई थी हर फैक्टर की, उसकी जगह हमें वेट दिया होगा. और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जब वेट दिए होते हैं, तो उसका जो ओवरऑल सम होता है वो 100 होता है वेट का. ठीक है. तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होता है. यू कैन सी द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी आप ही लोगों ने करना है. यू कैन सी कि यहाँ पर चेंज क्या है, कि यहाँ पहले फैक्टर रेटिंग दी हुई थी वेट की जगह. अब यहाँ पर वेट वेट है, तो वेट वेट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपका वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड का क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरह से आप इसको आप रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि ये कौन से मेथड का क्वेश्चन. नाउ टू इन द सेम वे. अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन द सेकंड लाइन इट इज रिटन 1 इक्वल पुअर एंड 5 इक्वल एक्सीलेंट. इसका मतलब जरूर समझ लीजिए. सपोज इट इज स्वेप्ड. ये जो वैल्यू यहाँ दी हुई है, मैं अगर ये कहूं कि 1 इक्वल एक्सीलेंट है एंड 5 इक्वल पुअर, तो आंसर में क्या चेंज आएगा ये आपने बताना. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई से इफ 1 इक्वल एक्सीलेंट एंड 5 इक्वल पुअर, आपका आंसर किस तरह से डिफर हो जाएगा. आप अपने आंसर को कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे ये बताइए. रेज योर हैंड. Sir, 5. क्या 5?
मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर मैं सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ दिया हुआ है 1 इक्वल पुअर 5 इक्वल एक्सीलेंट लिखा हुआ है ना, इसको आप अपोजिट कर दीजिए। यानी 1 इक्वल एक्सीलेंट है, 5 इक्वल पुअर है, और लोकेशन 1 की वैल्यू सपोज आ रही है 80 और लोकेशन 2 की वैल्यू आ रही है 100। कौन सी लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे और क्यों? बताइए कृतिका, आप बताइए। कृतिका हैज रेज्ड हर हैंड। यस कृतिका, अनम्यूट एंड स्पीक। कृतिका बेटा अपना माइक अनम्यूट करो फिर बोलो। हाँ सर एक्चुअली 1 लोकेशन पे होगा, मतलब 1 जिसका आएगा वो होगा, क्योंकि जो वो है वो एक्सीलेंट में काउंट होगा इसलिए। नहीं, मैंने क्या कहा, आपका लोकेशन 1 का स्कोर है 80, लोकेशन 2 का स्कोर है 100, इनमें से कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करोगे अब आप? 100 वाली। अगर 1 इक्वल है एक्सीलेंट एंड 5 इक्वल है पुअर, तब भी आप ये सेलेक्ट करेंगे? नहीं, मतलब 100 वही तो आपने मैं बोला ना कि 100 पे जो आएगा वो सिलेक्शन होगी उसकी। यही तो बेटा बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर समझो। मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब देखिए शायद उससे कंफ्यूजन हो रहा है लिखा होने से। अब बताओ कौन सा। लोकेशन 1 की वैल्यू 80 है, लोकेशन बी 2 की वैल्यू 100 है, विच वन यू विल सेलेक्ट? लोकेशन 2, वाई? क्योंकि उसकी वैल्यू 100 है। नहीं, यहाँ आप देखो ना, ये यही आपको समझना है। ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इस लाइन को देखो। अब हायर वैल्यू का मतलब हो गया कि वो वो खराब है। अच्छा, ठीक है ठीक समझ है। रहे हो ना? ये हाँ थोड़ा सा जी। ट्विस्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इस केस में जब आपका ये लिखा हुआ है जैसा मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर कि 1 इक्वल एक्सीलेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मिनिमम वैल्यू होगी वो एक्सीलेंट होगा, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो पुअर होगा। तो इफ आई से लेट्स एज्यूम कि अगर लोकेशन 1 पर आपका जो टोटल वेटेड स्कोर आ रहा है इट इज 80, एंड लोकेशन 2 पर अगर वेटेड स्कोर आपका 100 आ रहा है, देन यू विल सेलेक्ट लोकेशन 1 1। because the total weighted score is lower in case of location 1. Therefore, we will select location 1 for setting up medical facility healthcare center. Is it clear? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या इसका आंसर आ रहा है? अब ये एज इट इज है, इसको हम हटा देते हैं। एक बार रुकिए जरा, एक सेकंड है ना, मैं वहीं पर वापस जाता हूँ। यस, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर कि व्हाट इज द टोटल वेटेड स्कोर इन केस ऑफ लोकेशन 1 and what is total weighted score in case of location 2? Which one you will select and why? चैट में भी लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। समय का हो गया है शायद, यू कैन स्पीक। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसमें वही मेथड यूज करना है जिसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में मेथड यूज किया है। बेटा दोबारा बोलो, क्या पास से बोलो थोड़ा माइक्रोफोन के। सर इसके अंदर वही मेथड यूज करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है अभी तक। ये मुझे क्वेश्चन समझ हाँ, नहीं सेम आया मेथड, सेम मेथड बेटा, सेम मेथड है, केवल आपका जो रेटिंग है वो वेट से रिप्लेस हुआ है केवल। यानी आपका पहला स्टेप इसमें होगा W इंटू L1, सेकेंड स्टेप होगा W इंटू L2, summation of WL1, summation of WL2, whichever is higher value that you will select. बताइए आंसर क्या आएगा, कर लीजिए फिर बताइए, ठीक है। Pallavi, if yours is done, you can speak. Sir, answer is location 2. लोकेशन 2 दोनों की Because वैल्यू कितनी आ रही है? सर लोकेशन 1 की आ रही है 315 और लोकेशन 2 की आ रही है 335। ओके, अब ये पहले टैली कर लो। कृतिका अभी बता सकते हो, अनम्यूट एंड स्पीक। इज इट सेम?
315 Yes, and sir, 335. same. Location 1 is 315 and location 2 is 335. ओके नेहा, आप भी बताओ। So same. Location 1 सेम, 270. चलिए। Yes, sir. आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी का डिफरेंट नहीं आ रहा है। 315 यानी कि एल 335. अगर मैं बोलता हूँ WL1, W मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ जिससे आपको लोग बाकी भी देख सकें। 315 और WL2 अगर मैं समेशन देखता हूँ तो इट इज 335। यही वैल्यूज है। सो वी विल सेलेक्ट लोकेशन 2 as total weighted score is higher, that is 335, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर जरूर लिख के आएंगे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट इज द वेटेड स्कोर फॉर दीज साइट्स, इसलिए मैंने यहाँ पर जो लोकेशन 1 का स्कोर है 315 पहले लिखा, फिर लोकेशन 2 का जो स्कोर आया वो मैंने लिखा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर पूछा है विच इज द बेस्ट लोकेशन, तब मैंने बताया कि वी विल सेलेक्ट लोकेशन 2 एज टोटल वेटेड स्कोर इज हायर, दैट इज 335। इस तरह से आपको आंसर देके आना है, केवल नंबर्स पर छोड़ के मत आ जाना कि हमारा सम आ गया हो गया। नो, आपके इसमें नंबर कट जाएंगे। आपको पूरा आंसर विद रीजन आपको देके आना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन जिन्होंने अभी तक किया है? Yes, sir. ठीक है, सो शैल वी मूव अहेड, आगे चले। आज कोशिश करते हैं हमारे तीनों खत्म हो जाए। अब आते हैं लोड डिस्टेंस मेथड पर। नेक्स्ट मेथड इज लोड डिस्टेंस मेथड। अब आप सभी लोगों ने अपने चाइल्डहुड में, आई थिंक 8th या 9th में, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का, द सेम वी आर सपोज टू यूज हियर। ठीक है, क्या फॉर्मूला था याद है? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कैन एनीवन रिकॉल? याद आ रहा हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। डिस्टेंस निकालते थे ना, याद, एक डायग्राम हुआ करता था, 2 पॉइंट हुआ करते थे उसमें, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो यू कैन गो थ्रू विद दिस स्लाइड, यू कैन सी। अब शायद कुछ याद आ रहा होगा। अब इसमें आप डेरिवेशन के लिए ये मैंने लिखा हुआ है, इस पर ना जाते हुए आप केवल इस वाले पर आइए जो नीचे दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल मॉड एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस मॉड वाई ए माइनस वाई बी। और हम जानते हैं कि एक्स ए और वाई ए क्या होता है। जैसे सपोज ये ए पॉइंट लिखा हुआ है 10 15, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पहली वैल्यू को हम एक्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाली वैल्यू जैसे 15 है, इसको हम वाई बोलते हैं। तो ये ए पॉइंट है तो ये हो गई एक्स ए वाई ए, और बी पॉइंट की जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है तो एक्स बी, एंड सेकेंड इज वाई बी। तो इनके बीच के डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा अभी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल एक्स ए माइनस एक्स बी मॉड में प्लस वाई ए माइनस वाई बी। तो माई क्वेश्चन अगेन, दैट वाई डू वी यूज दिस मॉड्यूलस हियर? क्विकली आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके नेहा, यू कैन स्पीक। So distance cannot be 0. मतलब गुड, negative, sorry. हाँ, ये क्लियर है ना सभी को कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो इफ द 2 पॉइंट्स आर ऑन सेम, देन वी कैन से इट इज जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। है ना कुछ डिफरेंस फिर आ ही जाता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ ही जाता है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा मॉड्यूलस को यूज करेंगे। मींस यहाँ पर अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होगी तो हम उसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जस्ट गो थ्रू विद द क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आई विल बी आस्किंग कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट।
तो कौन बताने वाला है? एनी वन ऑफ यू हु कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? और अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन। ओके अश्मित, यस अश्मित, हाँ बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर मैं ये पूछ रहा था, ये पॉइंट ये कैसे दिए हुए हैं? किसमें क्या दिया हुआ है? सर ये पॉइंट दिए हुए हैं ना, 5.5, 4.5। पढ़ो एक बार, इंग्लिश समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके एंड देन मीनवाइल यू कैन वेट, द अदर मे आल्सो आंसर योर क्वेरी कि ये क्या पॉइंट दिए हुए हैं, शायद कोई हम में से कोई बता दे स्टूडेंट में से। अगर पढ़ लिया है तो बता सकते हैं जल्दी कोई भी एक जना कि क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन में क्या करना है। Okay, Pallavi would like to explain that what is given. Yes, Pallavi, unmute and speak. So what I can make out is there are 7 census tracts given, which are from What A is to this G. seven? What is this census tract? A, so these are mentioned na census tract from A to G in the table. नहीं ये होता क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सेंसस ट्रैक्ट का मतलब क्या है। इसको इजी करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं सेक्टर्स, ठीक है। यानी ये 7 अलग Okay. अलग लोकेशंस हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं जी, सेक्टर दिए हुए हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बोलिए। right. और सर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हर ट्रैक के या हर सेक्टर के, ठीक which है, is like XY, जो XY हमने अभी राइट। देखा था पिछले. जैसे ए का दिया So हुआ है 2.5, that is 4.5 है ना, इन दैट जी. वे। For यस, example, A का 2.5, 4.5, B का 2.5, 2.5, इसी तरह ठीक है, C से ओके। लेके G तक भी. और सर ये जो थाउजेंड, सर population load of each tract, this is given in thousands. For व्हाट example, इज A दिस की है, पॉपुलेशन लोड? this is the sir weight or the load. व्हाट डज इट मीन, लोड का मतलब क्या है? पर्टिकुलर जगह पे जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है शायद, दैट इज द राइट, लोड. राइट, वेरी राइट, इट इज Yeah. सेम। तो ये जो वैल्यू एक्चुअली है ये ना थाउजेंड्स में होगी, इसको है ना इन्होंने कॉमनली जो 000 है वो हटा के इन्होंने इसको इजी वे में इसको केवल इस नंबर में लिख दिया है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो वहां रहती है, ठीक है। Right, आगे sir. जी. सर वो उन्होंने 2 possible facility locations बताए हैं, फिर आगे जो mention है ना ये location 1 which is having the coordinates as 5.5, 4.5, which is same as the tract C, और location 2 का बताया है 7 और 2, which is same as tract F. ओके, ठीक है, उसके बाद सर we need to calculate the total load distance for both the locations. ठीक है। तो करना क्या है इसमें? maybe सर डिस्टेंस फाइंड करना है ईच ट्रैक से लेके फैसिलिटी तक, ईच सेक्टर से लेके फैसिलिटी तक, और उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस को उस पॉपुलेशन से, और फिर सारी वैल्यूज को प्लस कर देना है. ओके, ठीक है, चलिए गुड। एनीवन एल्स, कोई और बताएगा इसमें क्या दिया है, क्या करना है? एनी वन मोर इफ कैन एक्सप्लेन। चलिए ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट देयर आर वन न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर नीड टू बी एस्टेब्लिश। यानी हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एक बनाना है इन दिल्ली रीजन, और उसमें 7 ऐसे सेक्टर हैं जिनको जो हॉस्पिटल ओनर्स हैं या ग्रुप है वो टारगेट करना चाहता है कि वहां के पेशेंट हमारे यहाँ पर आएंगे फॉर द डिफरेंट डिजीज टू क्योर दोज डिजीज। तो अब जो 7 सेक्टर्स हैं उनके आपको ये 7
कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि वो कहाँ एग्जैक्टली लोकेट करते हैं, और उनमें से 2 उन्होंने ऐसे सेक्टर देखे हैं जो उन्होंने चूज किए हैं कि कहाँ पर वो लोकेशन को सेटल या सेटअप करना चाहते हैं, हॉस्पिटल के लोकेशन को कहाँ सेटअप करना चाहते हैं। तो जो अश्मित ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 5.5 4.5 क्या है, तो ये उन सेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है फॉर द पर्पज ऑफ हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, लिखा है ना क्लियरली। 2 लोकेशंस बीइंग कंसीडर्ड फॉर न्यू फैसिलिटी आर सी एंड एफ, जिनकी लोकेशन 5.5 4.5 सी की है, और 7 2 दे रखी है एफ की, जो आप टेबल में भी देख सकते हैं। तो हमें कुल Yes, sir. मिलाकर डिस्टेंस मेथड से ये बताना है कि सी और एफ में से वो कौन सी लोकेशन होगी जहां पर एग्जैक्टली हम हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करेंगे या बनाएंगे। Sure. आपको ये आंसर देना Yes. और Okay. किस बेस पे देना है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है विच लोकेशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल लोड डिस्टेंस, It's यानी true. कि डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो पेशेंट के लिए कौन सा बेटर लोकेशन रहने वाला है, वो हमें दोनों में बताना है। C and F में नाउ है ना सर? हाँ जी, सी एंड एफ में जो लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। तो आप इसमें कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। एक बार हम बनाते हैं जल्दी से। जस्ट अ मिनट। ये विजिबल है सभी को ना? थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कैलकुलेशन आपको विजिबल रहे सारी। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा बताया अभी पल्लवी ने भी बताया था कि हमें इसमें पहले डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर। सबसे पहला काम है डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी, क्योंकि पहला जो है इसमें डिस्टेंस फ्रॉम सी पॉइंट, सी की वैल्यू कितनी है 5.5 4.5। अब हम Yes. इससे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस की सी का डिस्टेंस ए से कितना है, सी का डिस्टेंस बी से कितना है, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड सी, बिटवीन डी एंड सी, ई एन सी, एफ एन सी एंड जी एन सी। यानी हर सेक्टर से आपको सी का डिफरेंस निकालना है। अब कैसे निकालना है, अब देखिए आराम से पर ध्यान से समझिएगा ना, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक मेरे साथ वो एक बार ध्यान से देख लें कि नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, मॉड एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस वाई ए माइनस वाई बी। तो हम ये जो वैल्यू आपको दी हुई है इसको एक्स ए वाई ए मान लेते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, चाहे आप इसको एक्स बी वाई बी मान लीजिए, तो ये सारी वैल्यू जो नीचे दी हुई है ये एक्स ए वाई ए हो जाएंगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सी वाली वैल्यू को अभी एक्स ए और वाई ए मान लिया है, तो 5.5 और ये बाकी जो वैल्यू है हर सेक्टर की वो आपके लिए एक्स बी वाई बी हो जाएंगी। तो अब क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए 5.5 एक्स ए माइनस एक्स बी, तो एक्स बी कितना हो गया 2.5, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 प्लस 4.5 माइनस 4.5 इट विल बी 0। इनका टोटल कर दीजिए, 3 डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आया है बिटवीन सी एंड ए सेक्टर्स। ये क्लियर है पल्लवी, अश्मित, कृतिका, नेहा, इज इट क्लियर? सर अभी नहीं हुआ, एक बार ये दोबारा से बता दीजिए। फिर नहीं आ रहा समझ बेटा एक बार नहीं आ रहा है ना, देखो दोबारा करते हैं इसको। मैंने ये कहा कि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या था, जरा यहाँ एक बार देख लो, ये वाला फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। मैंने ये कहा था ना अभी, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो सी है, सी को हमने मान लिया है अभी, सी का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो आपका एक्स ए है, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो वाई ए है। ठीक है, दोबारा देखिए, तो एक्स ए कितना है 5.5 5.5 माइनस एक्स बी कितना है, ए की वैल्यू में बताइए, बोलो कोई भी, बोलो कोई भी। 2.5 है ना, हाँ ठीक जी। है, वेरी गुड। ठीक है, प्लस वाई ए माइनस वाई बी, वाई ए की वैल्यू कितनी है
4.5. 4.5 है, 4.5. ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। 4.5 प्लस, नहीं सॉरी माइनस करना है ना, 4.5 माइनस माइनस वाई बी की वैल्यू कितनी है, 4.5. बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 4.5. टोटल बताइए कितना आएगा इसका, करके सॉल्व। यहाँ पर 5.5 माइनस 2.5 3 आ गया ना, प्लस 0 कितनी वैल्यू आएगी, इज इट क्लियर? ये सर। यही करना है आपको हर एक में। आपका जो एक्स ए वाई ए की वैल्यू है ये सेम रहने वाली है। एक्स बी वाई बी की वैल्यू हर कोऑर्डिनेट के साथ बी सेक्टर के साथ हो जाएगी 2.5 2.5, सी के साथ एक्स बी वाई बी की वैल्यू हो जाएगी 5.5 और 4.5। इस तरह से आपको हर एक का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए सेकंड वाला मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, बी से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट, जिससे हाँ मैं दोबारा निकाल रहा हूँ आपके लिए। अब ये पहला वाला हो गया, सेकंड पे आते हैं। देखिए अब इसमें एक्स ए की वैल्यू यही है ना, एक्स ए वाई ए यही वैल्यू है आपके पास। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5.5 माइनस, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, बी के केस में 2.5. 2.5 वेरी गुड, यही करना है। 2.5 ब्रैकेट क्लोज कीजिए। वाई ए कितना है, 4.5. 4.5. है ना, कोई डाउट हो तो बता देना। वाई ए माइनस वाई बी कितना, 2.5. 2.5. 2.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आ गई आपकी वैल्यू। कितनी आ रही है, पहले वाले में अगर हम 5.5 माइनस 2.5 करते हैं 3 आ रही है, 4.5 माइनस 2.5 कर रहे हैं 2 आ रही है, ये आपका आंसर आ गया 5। इज इट क्लियर नाउ? ये सर। बाकी लोगों को क्लियर है कैसे कैलकुलेट किया? ये सर। करिए ऐसे, बाकी निकालिए ऐसे सेम टू Yes, सेम। sir. अब आप ऐसे ही आपको आगे भी निकालना है। सी वाले पॉइंट पर आ जाइए। सी में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू सी और सी की सेम है। तो आपको क्लियर क्या लिखना है, 0 प्लस 0 इक्वल 0। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। क्योंकि सी ही पॉइंट तो आइडेंटिफाई किया हुआ है ना, और सी से ही आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। डी पर आ जाइए। अब डी के केस में करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 5.5 माइनस 5 प्लस 4.5 ब्रैकेट लगा देते हैं, 4.5 माइनस 2, बताइए कितना आ रहा है। देखिए 5, मैंने हाँ ठीक है, ये आएगा यहाँ पर 0.5 क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट से, प्लस 2.5 दूसरे वाले ब्रैकेट से। कितनी वैल्यू आएगी बताइए, 3. यही आएगी ना। ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ रही है, अभी भी डाउट है ये बताइए? आ रही है। सर मुझे समझ नहीं आ आई रही है तो बस ऐसे कर। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, सर मुझको ये समझ नहीं आई कैलकुलेशन। क्या नहीं समझ में आया सनक? ये जो आप वैल्यू ले ऊपर वाले में, जब आपने ए की वैल्यू ली तो ये 4.5 बेटा एक आपका है ना माइक्रोफोन का इशू है, थोड़ा पास से बोलो बेटा, मुझे क्लियर आवाज नहीं आती है आपकी। सर आपने ये जो ए की वैल्यू ली थी फर्स्ट कॉलम में 4.5 और हाँ 4.5 लिया था, तो 4.5 की जगह 2.5 क्यों नहीं है? कहाँ पे नहीं ली मैंने, एक फर्स्ट कॉलम में जो आपने वैल्यू ली थी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सर उसकी वैल्यू 3 है ये। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट की अगर डाउट है, देखो सी वाला अभी हम लेके चल रहे हैं ना, सी पॉइंट। तो हमने जो इसकी वैल्यू है 5.5 4.5 इसको माना हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा एक्स ए है, एक्स ए, और ये हमारा है वाई ए, ठीक है। अब हमारा 2.5 और 4.5 ये क्या हो गए, एक्स बी वाई बी। तो जब मैं एक्स ए में से 5.5 में से 2.5 को माइनस करूंगा तो 3 ही आएगा ना, प्लस 4.5 माइनस 4.5 0 आएगा, दोनों को ऐड कर दिया 3 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से करना है बेटा रेक में, सी पॉइंट से हमें सबका डिस्टेंस देखना है अभी, ठीक है। चलिए बाकी इसकी वैल्यू बताइए। अब मुझे आप बताइए, अगर आपने कर लिया ठीक से तो आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिस्टेंस ABCD कर लिया ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ई कितना आ रहा है ये बताइए।
जिसने कैलकुलेट किया है वो बताए। सो 3। 3 आ रहा है C2E। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, आपने बताया ठीक है। तो 5.5 माइनस, अभी समझना है ना, मैं बता ही रहा हूँ कि एक्स ए वाई ए क्या है, क्योंकि आपको पता है। एक्स ए 5.5 माइनस वाई ए, कितना है वाई ए 8, एक ब्रैकेट हो गया, प्लस वाई ए की वैल्यू है 4.5 माइनस 5, यही है ना। हो सकता है मैं भी Yes. गड़बड़ कर दूं तो बता देना। इक्वल 5.5 माइनस 8 कितने आते हैं 2.5, प्लस 4.5 माइनस 5 आते हैं 0.5, तो ये वैल्यू 3 आएगी। वेरी गुड, सही बताया बिल्कुल आपने, द वैल्यू इज 3। तो बस यही कैलकुलेशन रास्ता करिए, बताइए आंसर कितने कितने आ रहे हैं। सीई F हो for गया, अब सी 4. और एफ में। हाँ जी, 4. 4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 5.5 माइनस 7 ये आएगा 1.5, प्लस अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। 4.5 माइनस 2 वैल्यू विल बी 2.5। 2.5. वेरी गुड, ठीक है, 4 आ रहा है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए, लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। 5.5. 5.5 आ रहा है, ठीक है। हाँ जी. 5.5 माइनस 9 इट विल बी 3.5, हम्म. प्लस 4.5 माइनस 2.5 इट विल बी 2, इक्वल 5.5। बिल्कुल ठीक बताया आपने, तो यानी समझ में आ गया है। यहां तक क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब अगला कॉलम पे आ जाइए, डिस्टेंस फ्रॉम एफ निकालिए अब, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है यानी लोकेशन है Yes. वो है एफ। अब हमारा जो एक्स ए वाई ए है ये नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम सी से तो डिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब Yes. हमारा एक्स ए और वाई ए हो जाएगा ये एक्स ए, और 2 हो गया हमारा वाई ए। अब बाकी वैल्यू हमारी एक्स बी वाई बी सेम वे में हो जाएंगी। अब फिर से निकालते हैं, देखिए, अब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब देखते हैं 7। अब पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स ए की वैल्यू 7 है ना, Yes, 7 sir. माइनस 2.5, एक्स बी की वैल्यू है 2.5, प्लस वाई ए की वैल्यू है 2 2, माइनस 2, 4.5। 2, 4, 1. अब देखिए कितनी वैल्यू आएगी पहले वाले में, 4.5 प्लस 2 माइनस 4.5 इट विल बी 2.5, कितनी वैल्यू आ रही है 7। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सेम वे कैलकुलेट द अदर डिस्टेंसेस, बाकी भी निकालिए ऐसे ही। अगला करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। 7 minus बेटा बोल के मत करो, अपने आप करते जाओ, फिर बताओ आंसर लास्ट में, है ना। 9 7 माइनस 2.5 plus प्लस 2 माइनस 2.5. 2.5 इक्वल, बताइए जल्दी कितना आएगा। 5। 5. 5 आ रहा है, ठीक है, 5। ऐसे ही बाकी कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। एफ एंड सी 1.5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1.5 प्लस 2.5 इक्वल 4। नेक्स्ट पे आ जाइए, 2 प्लस 0 इक्वल 2। 8 और 5 वाले पे आ जाते हैं अब, 7 माइनस 8 1, प्लस 2 माइनस 5 3 इक्वल 4। अब f और f के बीच में जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी 0, Yeah. इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं जी, लास्ट वाला, 7 माइनस 9 2, प्लस 2 माइनस 2.5 0.5. 0.5 इक्वल 2.5. 2.5 इज द टोटल। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के पास। अगर यहां तक डाउट है तो फिर गड़बड़ होगी, है तो बताइए, आई विल क्लियर। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है।
अब नेक्स्ट कॉलम आते हैं हम। अब देखिए क्या करना है आपको। अब जो पॉपुलेशन है उससे ये जो डिस्टेंस आया है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? फिर मैं बोलता हूँ कि अब आपने ये जो हर सेक्टर के बीच में, दो सेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस निकाला है, अब आप क्या करेंगे, इसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया एल, ये जो पॉपुलेशन वाला एल दिया हुआ है, एल इंटू सी, क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस निकाला है सी से, जो सी कोऑर्डिनेट है। फिर हम लिखेंगे एल इंटू एफ, जो हमारा डिस्टेंस है एफ से। ये दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे, इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू है ना हमारी, ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू, इनसे आपको मल्टीप्लाई करना है पॉपुलेशन की वैल्यू को। तो देखिए 2 3 जा, एल इंटू सी में पहले कर रहा हूँ, 6 5 5 जा 25, 0 है तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 20 80, और 14 इंटू 5.5 77। फिर हम L इंटू एफ भी कर लेते हैं। अब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपके सामने है ये वाली 14 ठीक है। 25 तो ये आ जाएगा आपका 14, ये आ जाएगा आपका 35, वेरी गुड, सॉरी 35 25 25 है, 5 5 25, ठीक है, हाँ 5 5 25। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 40 नेक्स्ट 14, yes 10 इंटू 4 40, नेक्स्ट 0, 0 और लास्ट इज 2.5 इंटू 14 इज 35। अब इनका आपको सम कर लेना लास्ट में जाके। यहां निकालिए सिग्मा एलसी, 239 सिग्मा एलसी, ठीक है, कितना आ रहा है? 239 से 239। चेक कर लेना एक बार बाकी लोग भी कि यही आ रहा है या इसने गड़बड़ किया हुआ है, यही पता चल जाएगा, है ना। और एल इंटू एफ कितना आ रहा है? 168 168। नाउ विच वन लोकेशन वी विल सेलेक्ट। अब आपकी कैलकुलेशन पूरी हो गई है, तो विच लोकेशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल लोड डिस्टेंस स्कोर? LF. so the Location second F, one why? 72 wala, because the Why? load distance is lower. Yes, very good. So because since the total load distance is minimum in case of location F, which is 168, therefore we will select location F for setting up new healthcare facility in Delhi. ये क्लियर है? हम क्यों ये 168 सेलेक्ट किया? क्योंकि देखिए पेशेंट आपके जो 7 सेक्टर से आने वाले हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचने में सबसे कम डिस्टेंस, यानी कि अगर सपोज सारी पॉपुलेशन अगर हमारे हॉस्पिटल आती है तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो उनको कितना कवर करना पड़ेगा? 168, विच इज मिनिमम इन केस ऑफ एफ। तो जहां डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा उस लोकेशन को हम फाइनलाइज करेंगे। सो इन दैट वे वी विल सेलेक्ट लोकेशन एफ फॉर सेटिंग अप न्यू मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर इन दिल्ली। यहां तक किसी को डाउट कोई तो बताइए। No, डाउट है sir. तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आज हमने 3 तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो आज हम इतना ही करते हैं। तो अभी तक जो हमने कवर किया, आज हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन। फिर उसके रीजन क्या होते हैं हमने ये पढ़े कि क्यों हमें लोकेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है इन केस ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन वी कवर्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन सिलेक्शन डिसीजन, जिसमें कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, स्पेसिफिक फैक्टर विद रेफरेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिक फैक्टर विद रेफरेंस टू सर्विस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने कवर किए। ठीक है, देन वी हैव कवर्ड लोकेशन मॉडल्स, जिसमें हमने अभी 5 हमारे मेथड है, जिनमें से हमने 3 कवर किए हैं हमने अभी तक, फैक्टर रेटिंग, weighted factor rating and load distance method. In the next class we will begin with center of gravity method, then we will be covering break even analysis, then we will be done with this unit and we will move to the next third unit in the next class. ठीक है, तो so far any doubt to anyone? No, sir. No, जहां अभी तक जो हमने कवर किया ये को समझ में आ रहा है ना, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जितना भी जो हम कवर कर रहे हैं सारा का सारा, या इसमें किसी को कोई डाउट है या समझने में प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हो।